سیبی قبرستان۔ یونس نے ٹرین کی ریلوے اسٹیشن پر رک کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دور تک آبادی کے کوئی بھی آثار نہیں تھے۔ یونس کو بتایا گیا تھا کہ آبادی ریلوے کے اسٹیشن سے ہٹ کر کافی دور ہے۔ لوگ ٹرین میں سوار ہونے کے لیے تانگا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر تک تانگے کا انتظار کیا۔ تانگے کو نہ آنے پر اس نے پیدل ہی آگے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے آگے بڑھا۔ آدھا گھنٹہ مسلسل چلتے رہنے پر ایک قبرستان کے آثار دکھائی دیے۔ یونس سمجھ گیا کہ وہ آبادی میں داخل ہونے والا ہے۔ قبرستان میں ایک گورگن ایک قبر تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یہ بات جاننے کے لیے کہ وہ گاؤں میں داخل ہونے کو درست سمجھنے جا رہا ہے، گورگن سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ راستہ گاؤں کی طرف جاتا ہے نا؟ ہاں، یہ راستہ گاؤں ہی کو جاتا ہے، لیکن تم نے گاؤں میں کس کے ہاں جانا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں واقعی اس گاؤں میں اجنبی ہوں۔ یہاں کس سلسلے میں آئے ہو؟ گورگن نے پوچھا۔ یونس کو دیکھ کر گورگن کی آنکھوں میں خاص چمک آ گئی۔ اس نے اپنا پڑاؤ ایک جانب رکھا اور بڑی دلچسپی سے یونس کو دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی کمپنی کے کام سے اس گاؤں میں آیا ہوں۔ ہمارے موبائل کی کمپنی اس گاؤں میں کمپنی کی طرف سے موبائل ٹاور لگانا چاہتی ہے تاکہ موبائل صارفین کو سگنل میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اسٹیشن کے پاس اتنی جگہ ہے، وہاں کمپنی کا ٹاور لگا لو۔ گورگن نے مشورہ دیا۔ ہمیں آبادی میں ٹاور لگانا ہے۔ اس مقصد کے تحت گاؤں کی سروے کرنے کے لیے آیا ہوں، یونس نے بتایا۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ یہ تمہاری کمپنی کی اسکیم ہے کہ آبادی میں ٹاور نصب کیا جائے تاکہ سگنل کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ جگہ جگہ ٹاور لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، صارفین کو اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کمپنی سے انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، یونس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ چل دیتا ہوں۔ واپسی پر مجھ کو ٹرین بھی پکڑنی ہے۔ تم آگے جا رہے ہو مگر ہر طرف راستہ واپس اس سمت ہی آتا ہے، گورگن نے زیر لب کہا۔ یونس کو جاتا دیکھ کر گورگن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے چلتے ہوئے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے سامنے کئی مردے کفن پہنے آ گئے۔ یونس ایک مضبوط دل کا انسان تھا مگر مردوں کو دیکھ کر خوف سے اس کا چہرہ پھک ہو گیا اور یہ واپس پلٹ گیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، سانسیں بھی بے ترتیب ہو گئی۔ یونس دوڑتا ہوا گورگن کے پاس آیا۔ خدا کے لیے مجھے اس مردوں سے بچا لو۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ گورگن نے نظریں اوپر اٹھائی اور یونس کو دیکھا۔ اس وقت قبرستان درست کر رہا تھا۔ یہ مردے یونس نے اپنے حق میں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دیر قبل میں نے کئی مردے اپنے تعاقب میں آتے دیکھے تھے۔ اس طرف ان مردوں سے واسطہ پڑ گیا تو یہ بات سامنے آ گئی۔ گورگن نے مشورہ دیا، کیا وہاں مردے نہیں ہوں گے؟ یہ دنیا ہے، یہاں قدم قدم پر ہر انسان کا ایسی عصبی آفات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس سے ڈرنا چھوڑ دو ورنہ یہ تم کو اور بھی تنگ کریں گے۔ کیا تم میرے ساتھ گاؤں چل سکتے ہو؟ یونس نے کہا۔ گورگن نے یونس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ رقم بھی دے دوں گا، یونس نے آفر کی۔ رقم سے زیادہ مجھے اس قبر کو تیار کرنا ہے۔ یہ کسی خاص آدمی کی قبر ہے جس کا انتقال ہوا ہے؟ یونس نے پوچھا۔ ہاں، وہ کسی کے لیے خاص ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے خاص ہے۔ آج اس کے قتل ہونے کا دن ہے، پھر ان مردوں کو نئی زندگی مل جائے گی۔ کن مردوں کو؟ خوف سے یونس کا حلق خشک ہو گیا۔ گورگن نے اسے اب پرسار شخص لگ رہا تھا۔ وہ مردے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے تھے، گورگن نے کہا۔ اچانک قبریں کھل گئی اور وہ مردے جو کچھ دیر قبل ملے تھے وہ قبروں سے باہر نکل آئے۔ ان مردوں کو دیکھ کر یونس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ قبرستان سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ یونس نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں ایک جادوگر ہوں اور ان مردوں کو نئی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ مردے جب انسان تھے تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس وہ شیطانی عمل تھا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں ان کو زندہ ہو جانے پر ان کی شیطانی عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک نیک بزرگ نے اپنے عمل سے ان کو سزا دی اور موت کی گھاٹ اتار دیا۔ جب تک وہ بزرگ زندہ تھا میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ نیک بزرگ کے انتقال کر جانے پر میں ان کو آسانی سے زندہ کر سکتا ہوں، گورگن نے کہا۔ جو مر گئے وہ زندہ کیسے ہوں گے؟ یونس نے پوچھا۔
शैतानी आत्माओं को कुछ अरसे के लिए ज़रूरी सुलाया जा सकता है, मगर वो फिर से ज़िंदा हो जाती हैं। ये काम काला इल्म जानने वाला ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत करामत होते हैं। इनके ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं। आज की रात पूरे 100 साल के बाद आ रही है। इस रात में किसी खास इंसान का खून पीकर ज़ब्ह करके उनका खून मुर्दों पर डाल दिया जाए तो वो ज़िंदा हो जाएंगे। वो कौन सा इंसान है जिसके खून से ये मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे? वो इंसान तुम हो। हमें तुम्हारे यहाँ आने की खबर काले इल्म से हो गई थी, और मैं कब्र इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़ब्ह करके कब्र में दफना दूँ। इस तरह कोई भी तुम्हारे कत्ल का राज न जान सके। गोर्गन ने जोरदार टेका लगाया। यूनुस को अचानक सुबह अपने साथ होने वाला वाक़या याद आ गया। ट्रेन में सवार होने से कबल एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। जब बुजुर्ग ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो यूनुस ने 100 रुपये का नोट उसकी जानब बढ़ाया। इस बुजुर्ग ने 100 रुपये का नोट जेब में रखते हुए गौर कर देखा। मौत तेरे सर पर सवार है, बुजुर्ग ने कहा। यूनुस ने बुजुर्ग की इस बात पर समझा कि बुजुर्ग ये बात करके मजीद रकम तलब करना चाहता है, इसलिए जैसे यूनुस ने अपनी जेब में दोबारा हाथ डाला, बुजुर्ग ने जोरदार आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे और पैसे मत दो, मुझे रकम का लालच नहीं है। तुम खुश नसीब हो जो मैंने तुम्हारी जान का सदका ले लिया। अब कोई शैतानी मखलूक तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेफिक्र होकर ट्रेन में सवार हो जाओ, बुजुर्ग ने कहा। यूनुस को बुजुर्ग की बात पर हैरत का झटका लगा। अभी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर ही है, सफ़र करने के लिए टिकट भी नहीं लिया था। वो हैरत ज़दा सा हो गया, रेलवे स्टेशन की जानब बढ़ गया। यहाँ पहुंचकर इसका मुर्दों से पाला पड़ गया। वो सोच रहा था कि जब बुजुर्ग ने इसकी जान का सदका ले लिया था तो फिर उन मुर्दों के चुंगल में कैसे फंस गया। इससे बच निकलने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। यूनुस वहाँ से भागने पर नाकाम रहा। कब्र के मुर्दों ने मिलकर यूनुस को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया और कब्र के अंदर उतार कर सीधा लिटा दिया। उनको अब रात के होने का इंतज़ार था ताकि इसे ज़ब्ह किया जा सके। रात होने तक यूनुस की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी। वो बुरी तरह खौफज़दा था। इसी किसी गैबी मदद का इंतज़ार था, लेकिन रात होने पर वो उम्मीद दम तोड़ गई थी। इसकी मौत का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब से करीब होता जा रहा था। जब इसे कब्र से बाहर निकालने के लिए गोर्गन ने अंदर झांका तो वो समझ गया अब वो अपनी जान से गया। इसे जब कब्र से बाहर निकाला गया तो चाँद की रोशनी में इसे अंदाज़ा हो गया कि ये रात का वक्त है और तकरीबन 12 के दरमियान का वक्त है। शैतानी अमल के लिए रात 12 बजे का वक्त ही होता है। नौजवान, मरने के लिए तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारी मौत से इन मुर्दों को फिर से पहले की तरह शक्ति मिल जाए, गोर्गन ने कहा। यूनुस ने गोर्गन की बात सुनकर जान खुश्क हो गई। यूनुस को ऐसे लिटाया गया कि इसकी गर्दन से बहने वाला खून एक बड़े से बर्तन के अंदर जमा हो जाए। गोर्गन ने एक पत्थर पर तेज धार चाकू को घिसने लगा ताकि यूनुस का गला काटने में आसानी हो जाए, इसे किसी किस्म की तकलीफ न हो। फटी फटी आंखों से गोर्गन की तरफ देख रहा था। गोर्गन के हाथों में घड़ी बंधी हुई थी। वो एक हाथ में टार्च थी जिसकी मदद से वो घड़ी में वक्त देख रहा था। अचानक आसमान पर हर तरफ तरीही छा गई। चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। गोर्गन ने टार्च की रोशनी से अपने करीब के मंजर को रोशन किया हुआ था। यूनुस ने टार्च की रोशनी में देखा गोर्गन के चेहरे से खुशी फूट रही थी। इससे मुद्दों में जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी। गोर्गन ने छुरी को अपने हाथों में लेकर इसकी धार चेक की। वो मुतमईन अंदाज में यूनुस की जानिब मुतवज्जा हुआ। अभी वो यूनुस की शेर पर छुरी रख ही नहीं पाया था कि एक सफ़ेद लिबास में बरेश बुजुर्ग घोड़ा दौड़ाता हुआ इधर आया और उसने ज़ोर से गोर्गन की पेट पर लात मारी, जिससे गोर्गन लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। गोर्गन के चेहरे का रंग फक पड़ गया। बरेश बुजुर्ग के हाथ में रस्सी का फंदा था। उसने गोर्गन पर फेंक दिया जो उसके गले में जाकर फंस गया। इस वक्त परवेश बुजुर्ग ने घोड़े को एड़ी दी, जिससे घोड़ा तेज दौड़ने लगा। गोर्गन भी घोड़े के साथ घसीटता हुआ चला गया। फंदे से गोर्गन का दम घुट रहा था, आंखें बाहर को उबली हुई थी। गोर्गन ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोशिश में कामयाब न हो सका। वो मौत से हमकनार हो गया। यूनुस की जान लेना चाहता था, लेकिन वो खुद मौत का शिकार हो चुका था। गोर्गन ने मरने पर परवेश बुजुर्ग ने घोड़े से उतरकर गोर्गन की लाश को
खड्डे में उतार दिया। कब्रों के मुर्दों ने बुजुर्ग के खौफ से खुद ही अपनी अपनी कब्रों में जा सोए थे और एक आवाज़ बुलंद हुई, हमें दोबारा ज़िंदगी के लिए 100 बार फिर इस रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद वो कब्रों में दोबारा ऐसे बंद हो गए जैसे वो कभी खुली ही नहीं थी। बारिश बुजुर्ग ने यूनुस की जानिब मुतवज्जह हुआ। गोरकन की ज़मीन पर लेटा हुआ था। बारिश बुजुर्ग यूनुस की जानिब मुतवज्जह हुआ। गोरकन का ज़मीन पर लेटा हुआ चाकू उठाया और तेज़ी से यूनुस के जिस्म पर बंधी रस्सियाँ काटने लगा। यूनुस ने रस्सियों से आज़ाद होने पर इस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। तुझे इन बदरुओं से मैंने नहीं, तेरे सदके ने बचाया है, बारिश बुजुर्ग ने कहा। तो यूनुस को अचानक याद आया कि सुबह एक बुजुर्ग ने इससे कहा था वो खुशनसीब है, इसने इसका जान का सदका ले लिया है। वो उस बुजुर्ग से अभी कुछ पूछना ही चाहता था कि बारिश बुजुर्ग ने अपने हाथ का इशारा करते हुए बोले, इस जानब सीधे चले जाओ। गांव में आने पर जो तीसरा मकान है इस पर दस्तक देकर कहना बाबा जमाल ने एक मेहमान भेजा है, वो तुम्हारे खाने सोने का इंतज़ाम कर देगा और मेरे मुरीद का घर है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, यूनुस ने कहा। बारिश बुजुर्ग घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से एक जानब चले गए। चंद लम्हों में इसकी नज़रों से ओझल हो गए। रात का वक्त था। ये रात इसे कहीं न कहीं गुजारनी थी। भूख से उसका बुरा हाल था। जब वो गांव में गया तो दरवाजे पर दस्तक देने पर एक नौजवान बाहर आया। बाबा जमाल का पैगाम था। यूनुस को घर के अंदर ले गया। नौजवान ने यूनुस को खाने के लिए दस्तरखान पर बिछा दिया, जिस पर कई किस्म की डिशें मौजूद थी। इसने खूब सैर होकर खाना खाया। एक कमरे में इसके सोने का इंतज़ाम भी कर दिया। यूनुस बिस्तर पर लेटा तो जल्दी इसे गहरी नींद आ गई। सुबह बेदार होने पर इसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। इसके घर मेज़बान ने रात कई इतने लजीज खाने खिलाए, सोने को गर्म बिस्तर का इंतज़ाम किया। इससे बात करना की दूर बात में शुक्रिया अदा करना भी गवारा नहीं किया। यूनुस ने सोचा कि पहले वो अपने मेज़बान से अपने रवैये पर माजरत करेगा, फिर नाश्ते करेगा। इसे जागते हुए खासी देर हो चुकी थी। मेज़बान नहीं आया। यूनुस ने दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार दरवाजे पर दस्तक देने पर कोई नहीं आया। वो कमरे से बाहर आए और सेन में कोई नहीं था, बल्कि सेन में कचरा और दरख्तों के पत्ते ऐसे ज़मीन पर पड़े हुए थे जैसे वहाँ परसों से कोई नहीं आया था। जबकि वो रात में इस घर में दाखिल हुआ तो ये सेन साफ बिल्कुल साफ सुथरा था। यूनुस ने इसमें मौजूद तमाम कमरे देख डाले, सब खाली थे। इनमें सेन की तरफ कचरा पड़ा हुआ था। जब वो वापस इस कमरे की जानिब आया जिसमें रात गुजारी थी, इसमें भी कचरा पड़ा हुआ था और जिस बिस्तर पर वो रात गुजारी थी वो भी गायब था। वो ज़दा सा हो गया। तेज़ी से मकान से बाहर आया। बाहर आने पर इसे कुछ सुकून मिला। कल से इसके साथ पुरस्कार वाक़े हो रहे थे, जिसके सबब वो बुरी तरह खौफज़दा था। यूनुस ने गांव में अपना काम जल्दी से निपटाया। कुछ लोगों से कंपनी के नुमाइंदे की हैसियत से मुलाकात की। गांव में सर्वे करके वह जगह भी देखी जहां टावर लगना था। गांव के लोगों ने इसके साथ भरपूर तावन किया। काम मुकम्मल हो जाने पर गांव से बाहर निकल गया। गांव से निकलते हुए जब इसकी नज़र इस घर के दरवाजे पर पड़ी जहां उसने रात बसर की थी, इस मकान के दरवाजे पर जंग आलूदा एक ताला लगा हुआ था। ट्रेन के आने का वक्त हो चुका था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ स्टेशन की जानिब बढ़ गया। ट्रेन के आ जाने पर इसमें सवार हो गया। ट्रेन ने शहर की जानिब अपना सफ़र शुरू कर दिया। यूनुस ने ट्रेन में बैठा हुआ सोच रहा था कि कल सुबह इसके साथ पुरस्कार वाक़े का सिलसिला शुरू हुआ। अगर किसी को बताए तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसके साथ जो वो हकीकत था और कब्रिस्तान भी मौजूद था। गाड़ी में भी किसी को ये वाक़या और पुरसान मकान और मेज़बान इसकी मेज़बानी के बारे में बताता तो इसकी बात पर यकीन ना करते, इसे दीवाना समझते थे। इसलिए उसने गांव से शहर आकर किसी से भी पुरस्कार वाक़े का जिक्र नहीं किया।